مریم، جی امی، آبدہ خاتون کی آواز پہ مریم بری طرح چونک کر متوجہ ہوئی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ آبدہ خاتون نے بغور اس کے چہرے کی سمت دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پہ مریم یکدم سٹپٹا کی اور اپنے اڑے اور بکھرے ہوئے اعصاب کو یکجا کرنے کی فوری اور ناکام کوشش کی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا دھیان کہاں ہونے بھلا؟ مریم ماں کی نظروں کی کھوج سے بوکھلا گئی تھی۔ وہ انہیں اپنی پریشانی سے آگاہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر جودت افندی کے متعلق انہیں بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ ساری مجبوریاں اور گھر کے حالات بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے فوراً گھر بٹھا لیتیں۔ وہ ہر مشکل وقت میں صبر و شکر کرتے ہوئے گزارا کر سکتی تھیں، لیکن ان کی عزت پہ کوئی حرف آئے یہ برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ تم مجھے 2 روز سے کچھ پریشان سی لگ رہی ہو اور میں اسی انتظار میں ہوں کہ تم مجھے اپنی پریشانی بتاؤ گی، لیکن نہیں، تم پریشانی بتانے کے بجائے الٹا چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آبدہ خاتون نے بیٹی کا صحیح جائزہ لیا تھا اور مریم ان کے اتنے درست اندازے پہ مزید محتاط ہو گئی تھی۔ نہیں امی، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے، بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ فی الحال گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے جاب جوائن کیے ہوئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ ایسے میں مسز رزاق سے اپنی تنخواہ کے لیے کہوں بھی تو کیسے؟ وہ کیا سوچیں گے آخر؟ اور ادھر پورا مہینہ پڑا ہے، ابھی اتنے دن گزارا کیسے ہوگا بھلا؟ مریم نے جیسے تیسے سے ہی کوئی بہانہ بنا ہی لیا تھا اور اس کے جواب پہ آبدہ خاتون کی کھوجتی ہوئی جائزہ لیتی ہوئی نظریں ڈھیلی پڑ گئی تھیں۔ اللہ مالک ہے بیٹا، سب اس کی ذات پہ چھوڑ دو، گزارا کیسے ہوگا یہ اس کی ذات بہتر جانتی ہے۔ وہ مالک ہے ہمارا، ہم اس کے بندے ہیں، اسے ہماری فکر ہم سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ جو بھی ہوگا اس کی مرضی اور اس کی رضا سے ہوگا، تم بس اس کار اور اس کا رحم اور اس کی رضا مانگو، انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آبدہ خاتون نے مریم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تھپکا اور اسے سمجھایا تھا، جس پہ حقیقتاً تھوڑی دیر کے لیے مریم کا دل سنبھل گیا تھا، ورنہ تو اسے جودت افندی کی طرف سے دھڑکا ہی لگا ہوا تھا۔ بس امی، آپ ہمارے لیے دعا کرتی رہا کریں۔ ارے بیٹا، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ ارے یہ صبح صبح اتنا پیار کیوں ہو رہا ہے؟ آج کوئی خاص دن تو نہیں، کوئی برتھ ڈے وغیرہ یا تہوار؟ عدیل ناشتہ کرنے کی غرض سے باورچی خانے کی طرف آیا تو دہلیز پہ ہی ٹھہر گیا اور کافی حیرت کا اظہار کیا، جس پہ مریم اور آبدہ خاتون نے بے ساختہ مسکرا اٹھیں۔ اپنے بچوں کو پیار کرنے کے لیے کیا کسی خاص دن یا تہوار کی ضرورت ہوتی ہے؟ آبدہ خاتون نے عدیل کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آج کل زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ اپنی اولاد، اپنے بچوں کو پیار کرنے کے لیے بھی لوگوں کو خاص دن کی ہی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ عام دنوں میں تو وقت ہی نہیں ملتا۔ عدیل کا کہنا بھی بجا تھا، لیکن غلط تو آبدہ خاتون بھی نہیں تھی۔ یہ امیر اور بڑے لوگوں کی باتیں ہیں بیٹا، ورنہ ہم غریب لوگوں کے پاس اولاد اور بچوں کے سوا اور ہوتا ہی کیا ہے؟ ہم دولت کو نہیں، اولاد کو دیکھ دیکھ کر جینے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہماری جمع پونجی تو ہماری اولاد ہی ہوتی ہے۔ ان کے لہجے میں ممتا بول رہی تھی۔ عدیل آہستگی سے مسکرا دیا۔ یہ تو آپ واقعی صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن امی، چند ایسے امیر اور بڑے لوگ بھی ہیں جو آج بھی دولت کو نہیں، اپنی اولاد کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں، جن کی اولاد ہی ان کا سب کچھ ہے۔ ہمارے شہر کے بہت بڑے بزنس مین ہیں وقار افندی انڈسٹریز کے مالک، آج ان کی بیٹی کا برتھ ڈے ہے۔ آپ اس برتھ ڈے کی ارینجمنٹ کا ہی سن لیں تو حیران رہ جائیں گے۔ ان کی بیٹی کے ڈرائیور سے ملاقات ہوئی تھی، وہی ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ وقار افندی اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لوگ تو محاورتاً کہتے ہیں نا کہ اولاد کو دیکھ دیکھ کر جینا، لیکن وہ تو حقیقتاً اپنی بیٹی کو ہی دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں۔ عدیل کے ذہن میں منصور حسین کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ بس بیٹا، ایسی محبت وہی کر سکتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے، لیکن میں تو پھر بھی یہی سوچتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنی عاجزی میں ہی رکھے۔ آبدہ خاتون کافی عاجزی سے کہہ رہی تھیں اور عدیل ناشتہ کرنے کے لیے کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا، لیکن عدیل کے لیے ناشتہ گرم کرتی مریم کے ذہن میں ایک اور ریشم کا دھاگا الجھ گیا تھا۔ وہ وقار افندی اور جودت افندی کی ادھیڑ بن میں لگ گئی تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ جودت افندی اور وقار افندی ایک ہی فیملی سے بلانگ کرتے تھے، اور مریم سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ آخر وہ اتنی امیر کبیر فیملی اور اپر کلاس سے تعلق رکھنے والا لڑکا اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ اس کے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی موجود تھی، ماڈرن، سٹائلش، خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکیاں تو اسے بے شمار مل سکتی تھی، پھر اس کی نظر انتخاب مریم پہ ہی کیوں ٹھہر گئی؟ وہ اسے اس طرح کیوں دیکھتا تھا؟ اس کی نظریں اتنی بے باک ہوتی تھی کہ مریم اندر ہی اندر سمٹ کے رہ جاتی۔ اور تو اور اسے اب یہ بھی دھڑکا لگ گیا تھا کہ وہ ابھی ایک بار اس کے سامنے آیا، اب وہ بار بار سامنے آئے گا اور بار بار اس کے راستے کی رکاوٹ بنے گا، اور وہ جو اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے کا عزم لے کر گھر سے نکلی تھی، اس کا کیا بنے گا آخر؟ اور اسی آخر پہ آ کر اس کی پریشانی اور تفکرات کے سائے شروع ہو جاتے تھے، جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگتے تھے۔
13 नवंबर और 14 नवंबर की दरमियानी शब लेकर अब तक सब कज़न्स उसे बारी बारी विश कर रहे थे। सबसे पहले रात के 12 बजे उसे आसिर ने विश किया था और सबसे पहला गिफ्ट भी आसिर ने दिया था। उसके बाद वकार अफंदी और आसिया अफंदी उसे विश करने के लिए उसके बेडरूम में आए थे। उनके जाने के बाद बाकी सब ने मिलकर मध्यम तालियों की धुन पे उसे इतने खूबसूरत अंदाज में विश किया था कि अलीज़े खुशी से चमक उठी थी। हुर्मत ने उसके लिए केक पैक किया हुआ था और रात 12:15 बजे उसने वही केक काट कर सबका मुंह मीठा करवाया था। और उसी तरह सुबह वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आई तो डाइनिंग रूम ताज़ा फूलों से सजा हुआ नजर आया। ये मेरी तरफ से प्रीटी स्वीटी एंड ब्यूटीफुल डार्लिंग अलीज़े के लिए। जोदत ने अचानक सामने आते हुए एक सुर्ख रंग का ताज़ा गुलाब उसके सामने पेश किया, यूँ जैसे कोई बॉयफ्रेंड बड़े स्टाइल से अपनी गर्लफ्रेंड को पेश करा। और अलीज़े के साथ साथ बाकी सब भी उसके अंदाज पे मुस्कुरा दिए। थैंक यू हैंडसम चार्मिंग एंड डैशिंग ब्रदर, अलीज़े ने उसी के से स्टाइल में कहते हुए फूल उसके हाथ से थाम लिया, जिस पे डाइनिंग रूम में मौजूद सभी अफराद यकदम कहका लगा कर हंसे थे। और उनमें सबसे बुलंद कहका वकार अफंदी का ही था। वो बेटी की शोखी और शरारत पे बेपनाह खुश हो रहे थे और उन सब की इन्हीं शोखियों और शरारतों में उन्होंने नाश्ता किया और फिर सब अपने अपने कामों और अपनी अपनी तैयारियों में लग गए थे। हर तरफ गहमा गहमी का सा समा था। मुलाजमीन की अलग दौड़ लगी हुई थी। मुबारिक खान सबके सर पर सवार अपनी निगरानी में काम करवा रहा था ताकि कोई कमी ना रह जाए और कोई कोताही ना हो। वकार अफंदी मुबारिक खान के काम से बहुत खुश थे। वो अपना हर काम मेहनत लगन और पूरे ध्यान से मुकम्मल करता था और इस तरह कभी किसी को उससे कोई शिकायत नहीं हुई थी। शाम को जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हुआ, देखने वालों की आंखें खैरा रह गईं। कई कनाल पे फैली हुई वसी और इस बड़ी हवेली उस वक्त रोशनियों का एक पूरा जहान लग रही थी और रोशनियों का ये जहान उस वक्त सिर्फ और सिर्फ शहजादी अलीज़े की खुशी में आबाद था। और आज यहाँ उस खुशी में शहर के बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों ने शिरकत करनी थी और उसकी शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहले आसिया अफंदी की दोस्त मिसेस बदर अपनी फैमिली के साथ आई थी। आसिम, साइम, फातिमा और मिस्टर बदर कमाल भी साथ थे। हाय आंटी, कैसी हैं आप? फातिमा आगे बढ़ के आसिया फंदी से काफ़ी शौक से मिली थी। फ़ाइन बेटा, आप सुनाओ, कहाँ होती हो? बड़े अरसे बाद देखा है। आसिया फंदी ने प्यार से गाल से हिलाते हुए पूछा। बस यूनिवर्सिटी की वजह से बहुत बिजी होती हूँ, लेकिन आज सोचा कि अलीज़े को ही देखा हूँ। आज के दिन तो अलीज़े की छप देखने वाली होती है। फातिमा ने खुले दिल से तारीफ़ की और उसकी इस तारीफ़ में कोई मुबालगा आराई भी नहीं थी, क्योंकि हमेशा सादा रहने वाली अलीज़े जब अपनी बर्थडे के रोज़ इतने सारे लोगों की वजह से हल्का फुल्का मेकअप करती थी और नाजुक सी ज्वेलरी पहनती थी तो यूँ लगता था जैसे वो हज़ारों श्रृंगार करके सामने आ गई हो। बस बेटा, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, वरना तुम खुद इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हो। उन्होंने उसकी ठोड़ी को छुआ और फातिमा मुस्कुरा दी। अच्छा, तो अलीज़े अब कहाँ है? फातिमा अलीज़े को देखने के लिए बेचैन हो रही थी। अपने बेडरूम में है, थोड़ी देर तक आ जाएगी। ओके, लेकिन कोमल और हुर्मत भी नज़र नहीं आ रही। तुम अंदर चली जाओ, तुम्हें सब नज़र आ जाएंगे। आसिया फंदी ने मुस्कुराकर अंदर की सिमत इशारा किया और फातिमा भी जवाबन मुस्कुराते हुए सर हिलाकर अंदर की सिमत बढ़ गई। तो आजकल क्या मसरूफियत है आप लोगों की? आजिर, साइम और जोदत से पूछा था, जिस पे आसिम बेसाख्ता मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे उन लोगों की मसरूफियत का थोड़ा बहुत अंदाज़ा पहले से ही था। इसीलिए पैंट की जेबों में हाथ घुसाते हुए हल्के से खिंकारा था। हमारी मसरूफियत वही है जो पहले थी, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी, बस, और तो कुछ नहीं। जोदत ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से जवाब दिया, जिस पे साइम ने चेहरा झुका लिया। बस, और तो कुछ नहीं ना? आजिर ने दोहरा के पूछा, क्योंकि आज 2 दिनों बाद वो दोनों बड़े अरसे बाद इकट्ठे नजर आए थे। जी हाँ, और कुछ नहीं। क्यों आसिम साहब, क्या ये ठीक कह रहे हैं? आजिर ने आसिम को मुखातिब किया। इतने अच्छे अंदाज में कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। आसिम ने भी जवाबन कंधे उचकाए थे और आजिर बस देख के रह गया। अरे आजिर साहब, जाने दीजिए, क्यों रंग में भंग डाल रहे हैं? आज इन्हें एंजॉय करने दे, ये इन्वेस्टिगेशन कल के लिए रहने दे। आसिम ने नरमी से कहते हुए उनकी जान बख्शी करवाई थी और वो बड़ी सहूलत से वहाँ से खिसक गए थे और इतनी सी देर में ही उनका पूरा लॉन लोगों से भर चुका था। हवेली के गेट से लेकर अंदर ड्राइंग रूम तक रेड कारपेट बिछा हुआ था और उस खूबसूरत अरेंजमेंट को मध्यम सुरों में बजना म्यूज़िक और भी दिल फरेब और सहर अंगेज बना रहा था। हमेशा की तरह आज भी लोगों की नज़रों में सताइश थी और कई लोगों ने बाकायदा सराहा भी था और इस चीज़ का सारा क्रेडिट मुबारिक खान को जाता था, जिस पे वकार अफंदी भी खुश थे और मुबारिक खान भी खुश था। इतने सारे लोगों की तारीफ पे उसकी सारी मेहनत वसूल हो गई थी।
मुबारक खान, केक आ चुका है या नहीं? आसिया बंदी अचानक कुछ याद आने पे अपने करीब खड़ी ख्वातीन से एक्सक्यूज़ करती हुई मुबारक खान की तरफ आ गई। जी बेगम साहिबा, केक तो 1 घंटा पहले ही मंगवा लिया था मैंने। मुबारक खान ने काफ़ी एहतराम और ताबेदारी से जवाब दिया। शाबाश, मैंने सोचा कि कहीं ऑर्डर लेट ना हो जाए। बड़ी हवेली से कोई ऑर्डर और वो लेट हो जाए, ये कैसे हो सकता है बेगम साहिबा? मैं केक चेक करने के लिए 3 बार गया हूँ। यूँ समझे के पास खड़े होकर तैयार करवाया है। इंशाल्लाह सब मेहमानों को पसंद आएगा। मुबारक खान को जैसे पूरा यकीन था। और आसिया बंदी जवाबन कुछ कहने ही वाली थी कि अहमद पास आ गया। आनी, वो कुछ ख्वातीन आपको याद कर रही हैं। अहमद ने एक टेबल की तरफ इशारा किया था और आसिया बंदी ने फ़ौरन गर्दन मोड़ कर देखा। उनके कुछ जानने वाली ख्वातीन बैठी हुई थी जिन्हें सरबत बेगम कंपनी दे रही थी। अच्छा, मैं आ रही हूँ। और मुबारक खान, ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। आसिया बंदी कहते हुए उन औरतों की सिमत बड़ी थी। उन्होंने आज ग्रे कलर की खूबसूरत, नफीस और इंतहाई कीमती साड़ी ज़ेबे तन कर रखी थी, जिसमें उनकी ग्रेसफुल शख्सियत बहुत मुतासिर कुन लग रही थी। थोड़ी देर पहले वकार बंदी के पहलू में खड़ी जच रही थी और फोटोग्राफर ने उनकी कई तस्वीरें बना डाली थी। जरी बेटा, इधर आ जाओ, चोट लग जाएगी। यह आवाज़ आसिया बंदी की समातों से अचानक टकराई थी और उनके कदम बेसाख्ता थमके थे। उन्होंने उस आवाज़ की सिमत तड़प कर देखा। एक औरत अपनी 3-4 साला बच्ची को पुकार रही थी जो लॉन में खेलते हुए इधर उधर भाग रही थी। आसिया बंदी उस प्यारी सी बच्ची को देख कर रह गई। जरी, उन्होंने धीमे और खोए हुए अंदाज में ज़ेरे लब दोहराया था और यूं लगा जैसे उनका दिल मुट्ठी में आ गया हो। जरी के नाम पे उनके दिल से हूक निकली थी। आनी, देखें, अलीज़े आ गई है। उनके करीब ही अनूशे बेतहाशा चहक कर बोली और आसिया बंदी ने उस बच्ची से नज़रें हटाकर अलीज़े पे मरकूज़ कर दी। अलीज़े उन्हीं की सिमत आ रही थी और अलीज़े के एक एक कदम पे हज़ारों निगाहें उठ रही थीं। ब्लैक कलर के जदीद तराश खराश के इंतहाई कीमती और खूबसूरत लिबास में मलबूस अलीज़े आफंदी उस वक्त हज़ारों निगाहों के नीचे बसने वाले दिलों की धड़कनें बेतरतीब कर गई थी। और आज़िर आफंदी के सीने में तो कई बार हार्ट बीट मिस हुई थी और पहली बार ऐसा हुआ था कि उसे देखकर आज़िर के सीने में धड़कते एक जानदार ने कुछ बौखलाई हुई हरकतें सरजद की थीं, बेख्तियार और अचानक। शायद इसलिए कि आज वो पहली बार स्याह रंग पहन कर आई थी, या शायद इसलिए कि वो पहली बार इतने दिल से तैयार होकर आई थी। लेकिन जो भी था, सबको मबहूत करने के लिए काफ़ी था। ब्लैक कलर की लॉन्ग शर्ट पे ब्लैक धागे का काफ़ी नफीस काम किया गया था। सामने दामन पे और बाजुओं की पट्टी पे सिल्वर क्रिस्टल के नग जड़े हुए थे और यही नग उसके दुपट्टे की चारों तरफ पे नज़र आ रहे थे। चूड़ीदार पजामे के नीचे ब्लैक पेंसिल वाली हील सैंडल उसके खूबसूरत और मुतनासिब सरापे को और भी नुमाया दिखा रहे थे। स्टाइलिश और यूनिक से हेयर स्टाइल के बावजूद अलीज़े ने दुपट्टा काफ़ी सलीके से सर पे ओढ़ रखा था। ये उसकी आदत थी, वो कभी नंगे सर सामने नहीं आती थी। अलबत्ता उसे नंगे सर किसी ने देखा था तो वो सिर्फ मंसूर हुसैन था, इसीलिए तो वो अब कहीं नज़र आ जाता तो वो नज़रें चुरा जाती। मम्मा, क्या देख रही हैं? अलीज़े ने पास आकर माँ के हाथ थाम लिए थे। आसिया बंदी एकदम चौंकी। देख रही थी कि मेरी बेटी माशाल्लाह अब जवान हो चुकी है, शादी के काबिल हो चुकी है। उन्होंने प्यार से कहते हुए अलीज़े की नज़र उतारी और उसे अपने साथ लगा लिया। अलीज़े बुरी तरह झेमकी। मम्मा, उसने खुफगी का इजहार किया। अच्छा, इधर आओ, मेहमानों से मिलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आसिया बंदी उसे साथ लेकर मेहमानों से मिलवाने लगी और रफ्ता रफ्ता केक काटने का टाइम भी आन पहुंचा। बड़े से केक पे उसका नाम और बर्थडे लिखा हुआ था। छोटी छोटी केक कैंडल्स को गुल करते ही फिजा में एकदम से हैप्पी बर्थडे और तालियों की आवाज़ गूंजने लगी। यहाँ तक कि हवेली के दरो दीवार भी गुनगुना उठे थे। अलीज़े ने सबसे पहले वकार अफंदी और आसिया अफंदी को केक खिलाया था, लेकिन यही केक वकार अफंदी के हलक में अटक गया था। उनके सेल पर एक मैसेज मौसूल हुआ। बेटी की सालगिरह मुबारक हो वकार अफंदी, लेकिन इतना याद रखो, आज तुम अपनी बेटी की 20वीं और आखिरी सालगिरह मना रहे हो। आइंदा तुम्हें मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। वकार अफंदी के हाथ में मोबाइल लरस के रह गया और उनके चेहरे की रंगत यकलख्त ज़र्फ पड़ गई। लेकिन इतने सारे लोगों में और इस हंगामे में कोई भी उनकी सिमत मतवज्जे नहीं था। वो मरे मरे बेजान कदमों से चलते हुए मरकजी हिस्से से थोड़ा हट के थे, लेकिन उनकी ऐसी शगुफ्ता सी हालत देखकर गेट के पास खड़ा मंसूर हुसैन फ़ौरन लपक कर उनके करीब आया। अरे साहब, आप ठीक तो हैं ना? क्या हुआ है आपको? उसने वकार अफंदी को थाम कर करीबी कुर्सी पर बिठाया था। एक गिलास पानी ला दो। जी अभी लाया। वो फ़ौरन गया और पानी लेके आया। वकार अफंदी एक ही सांस में पूरा गिलास पी गए थे। अब ठीक हैं आप? हाँ ठीक हूँ।
وہ ابھی بھی اپنا سینہ سہلا رہے تھے اور اپنی کیفیت کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت یہاں ہزاروں لوگ جمع تھے اور اتنے لوگوں میں ان کی ذرا سی بات بھی ایشو بن سکتی تھی اور رسوائی کے بھی بے پناہ امکان تھے۔ اسی لیے ضبط کر جانا اور خاموش ہو جانا ہی بہتر تھا، کیونکہ اس وقت کچھ بولنے کا یا ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بلکہ الٹا نقصان تھا۔ ان کی اپنی جگہ ہنسائی ہوئی تھی کہ کسی نامعلوم اور اندیکھے دشمن نے ان کی نیندیں اور ان کی زندگی حرام کر رکھی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے، بلکہ اس کے سامنے ہر طرح سے بے بس تھے۔ اور پھر فنکشن ختم ہونے تک وہ اسی طرح قدرے گمسم اور چپ چاپ سے رہے، اور فنکشن ختم ہونے کے بعد بھی ان سب نے پوچھا تو طبیعت خرابی اور سر درد کا کہہ کر اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ اس لیے باقی سب نے بھی خاموشی سے اپنے اپنے بیڈ رومز کا رخ کیا، اور ویسے بھی سب تھکے ہوئے تھے، سب کو نیند آ رہی تھی، اس لیے کسی نے بھی اس مسئلے پہ زیادہ غور نہیں کیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی ڈیئر الیزے ڈارلنگ۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی جیولری اتار رہی تھی جب کوئی دھیمے سے گنگنا کر اسے وش کرتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ الیزے نے چونک کر آئینے میں نظر آتے عکس کو دیکھا اور پھر یکدم سے کرنٹ چھو گیا۔ وہ ایک سیکنڈ میں تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ ڈرائیور، تم یہاں میرے بیڈ روم میں؟ الیزے پہ تو جیسے حیرت اور اچنبھے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ رات کے اس پیر اپنے بیڈ روم میں کسی ملازم کو اتنے استحقاق سے داخل ہوتے دیکھنا بھی تو سر پہ پہاڑ ٹوٹنے کے ہی برابر تھا۔ جی ہاں، میں یہاں شہزادی الیزے کی خوابگاہ میں، اس نے کہتے ہوئے انتہائی سکون اور سہولت سے دروازے کا لاک لگا کر پالٹ بھی چڑھا دیا۔ ڈرائیور، یہ کیا کر رہے ہو تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے بیڈ روم میں آنے کی؟ الیزے اسے دروازہ بند کرتے دیکھ کر پاگل ہو اٹھی تھی، لیکن ساتھ ہی اس پہ خوف بھی طاری ہو چکا تھا، کیونکہ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کی سمت آ رہا تھا۔ یہ جرأت میں ہزاروں بار کر چکا ہوں جانے ڈرائیور، جرأت کا قصہ نہ چھیڑو، وہ بڑی دلکشی سے کہتا ہوا عین اس کے سامنے آ رکا۔ الیزا اس کے تیور دیکھ کر برف کی مانند ٹھنڈی ہونے لگی تھی۔ اس کی خوبصورت پیشانی پہ ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے، کیونکہ منصور حسین آج منصور حسین نہیں کچھ اور ہی لگ رہا تھا، صاف ستھرا، خوشبوؤں میں بسا ہوا۔ اس کی ڈریسنگ بھی بے تحاشا قیمتی نظر آ رہی تھی اور الیزے کے چاروں اطراف خوف و خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ یکدم کسی متوحش ہرنی کی مانند بدحواس ہو کر دروازے کی سمت بھاگی تھی، لیکن دوسرے ہی پل اس کی کلائی جکڑ کر اسے بیڈ کی سمت دھکیل دیا گیا۔ وہ بری طرح چکرا گئی تھی۔ ڈرائیور، وہ چیخ اٹھی تھی۔ میں ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا، اس نے اپنی جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالتے ہوئے سکون سے جواب دیا۔ تو پھر کون ہو تم؟ میں شوہر ہوں تمہارا۔ اس کا سکون ہنوز برقرار تھا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا گھومتی ہوئی نظر آئی تھی۔ شوہر؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون ہو تم بتاتے کیوں نہیں؟ الیزے خود میں بمشکل ہمت پیدا کرتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے سگریٹ سلگانے لگا تھا اور پھر گہرا کش لے کر دھواں الیزے کے چہرے پہ چھوڑ دیا۔ دلاور شاہ۔ اس نے دھواں الیزے کے چہرے پہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی اس کے چہرے پہ پھونک دیا تھا۔ دلاور شاہ؟ ہاں، دلاور شاہ، اور تم دلاور شاہ کی بیوی ہو، اس نے کہتے ہوئے الیزے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کر لیا اور پتھر کی مورتی کی طرح پتھرائی ہوئی الیزے کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ ڈرائیور، منصور حسین، دلاور شاہ، شوہر، بیوی، یہ سب اس کے ذہن میں گٹمٹ سے ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ بیوی، ان سب لفظوں پہ اور ان سب ناموں پہ ایک نام بھاری ہو گیا تھا، اور اس لفظ کا یہ بھاری پن الیزے کے نازک دل و دماغ اور نازک حساب سے سہارنا مشکل ہو گیا۔ اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے زمین پر آ گرتی، دلاور شاہ نے احتیاط سے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے بے حد قریب بیڈ پہ ہی بیٹھ گیا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے کبھی اتنی جدوجہد اور اتنا صبر نہیں کرتا جتنا میں نے کیا ہے۔ انتظار ہی کرتا رہا کہ کب تم 20 سال کی ہوگی اور کب میری دسترس میں آؤ گی۔ تمہیں پانے کے لیے تو میں نے رانجھا بننے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب دعا کرو کہ کوئی کیدو پیدا نہ ہو۔ دلاور نے انتہائی سکون اور نرمی سے کہتے ہوئے اس کا نازک دودیا مخملی سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے ہلکے سے دبایا تھا، اور الیزے اس کے مضبوط ہاتھ کے دباؤ اور حدت سے یکدم جیسے پھر سے حواسوں میں آ گئی تھی۔ اسے کرنٹ چھو گیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ کھینچتی ہوئی جھٹکے سے کھڑی ہوئی، لیکن دوسرے ہی پل وہ دلاور کے ہلکے سے جھٹکے سے ہی اس کے اوپر آ رہی تھی۔ اتنا احتجاج کس لیے میری جان؟ احتجاج کرنے سے پہلے کم از کم یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہم آخر کتنے پانی میں ہیں، ڈٹ جائیں گے یا بہہ جائیں گے۔ وہ اسے احتیاط سے سمیٹ چکا تھا۔ وہ تڑپی تھی ماہی بے آب کی مانند۔
ड्राइवर प्लीज़ छोड़ दो मुझे, तुम कौन हो, क्या हो, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, प्लीज़। अलीज़े के हलक में बेबसी के मारे आंसुओं का गोला सा अटक गया। वो अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में इतनी बेबस हो चुकी थी कि अपनों को भी मदद के लिए नहीं पुकार सकती थी, क्योंकि बेडरूम की दीवारें साउंड प्रूफ थी और अलीज़े बेबस। जाने ड्राइवर, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तुम ये सब जानने लगोगी, लेकिन 2 घड़ी पास तो बैठो, धड़कनों का धड़कनों से तालमेल तो होने दो। कुछ ड्राइवर की समझो और कुछ ड्राइवर को समझाओ। मसले तो तभी हल होते हैं जब बाहमी मशवरे और मुज़ाकरात किए जाएं। इस तरह उठ उठ कर भागने से सवाए खींचातानी की और कुछ नहीं होता। दिलावर ने उसे दोबारा बेड पे बिठा दिया और सिगरेट का आखिरी कश लेकर सिगरेट को कालीन पे फेंका और अपने बूटों तले मसल दिया। सॉरी, तुम्हारे बेडरूम में एशट्रे नहीं है ना, इसलिए कालीन को जिग पहुंचानी पड़ी। उसने साथ साथ माजरत के आदाब भी पूरे किए थे और फिर ज़रा सा तिरछे अंदाज में बैठते हुए पूरी तवज्जो से उसकी सिर्फ मतवज्जे हुआ। बताओ, क्या जानना चाहती हो, क्या बताऊं तुम्हें? वो जैसे अब अपने असल रूप और असल मिजाज में आ गया था। उसके देखने का अंदाज और बोलने का लहजा बदल गया था। अलीज़े चौंकी और एक पल के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई और खौफ से रूह भी कपकपा उठी। खैरू बाबा पे फायरिंग करवाने से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है सब बताता हूँ तुम्हें। एक बात भी नहीं छुपाऊंगा। पहले ये लिफाफा खोलकर चेक कर लो, इसमें निकाह नामा भी है, उसकी भी तसल्ली कर लो, जान लो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। दिलावर शाह ने नपे तले सर्दो सपाट से लहजे में कहते हुए अपनी पैंट में अड़सा हुआ लिफाफा निकालकर अलीज़े की गोद में रख दिया, यूं जैसे उसे मुंह दिखाई पेश की और अलीज़े की रंगत मुतगय्यर हो गई। खैरू बाबा पे फायरिंग का जिक्र सुनकर तो उसके रहे से ओसान भी खता हो गए थे, इसलिए गोद में रखा लिफाफा उठाकर खोलने की तो उसमें हिम्मत ही नहीं थी। खौफ लम्हा बलम्हा कतरा कतरा उसकी रगों में फैलता जा रहा था और उस खौफ की लर्जिश उसके हाथों से नुमायां नजर आ रही थी। उसके हाथ बुरी तरह कपकपा रहे थे, लेकिन फिर भी उसे वो लिफाफा तो खोलना था। सो बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मतें मुजतमा करते हुए उसने हाथ बढ़ाकर वो लिफाफा उठाया और चाक कर दिया। धड़ाम की आवाज़ से कुछ गिरा और गिर कर टूट गया और टूट कर बिखरने की आवाज़ बहुत दूर तक गई थी। इतनी दूर के सुनने वाले दहल गए थे। जरी कुछ गिरा है? निगारिश ने सीढ़ियों की रेलिंग से झुकते हुए पूछा। हाँ, जरी की बेयकीन और सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या गिरा है? मेरा दिल। जरी की सहमी हुई आवाज़ को निगारिश मजाक समझी थी। अच्छा, तो क्या टूट गया? हाँ भाभी, टूट गया मेरा दिल। अब की बात जरी की आवाज़ में आंसुओं का गलबा था। वो शायद रो पड़ी थी और निगारिश ठटक कर सीधी हुई और तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई सीढ़ियाँ उतर आई। जरी लाउंज में लगे रैक के पास खड़ी थी और काफ़ी शिद्दत से रो रही थी और उसके रोने की वजह निगारिश को लाउंज के फर्श पे ही बिखरी नजर आ गई थी, जिसमें निगारिश का दिल भी धक से रह गया। ब्लैक कलर का कॉफ़ी का मग बड़ी बेदर्दी से टूटकर टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। ये मग 3-4 साल पुराना था। जरी एक बार मदिया के साथ मार्केट गई थी और हाँ, उसे ये मग बहुत पसंद आए थे। तब उसने 3 मग एक साथ खरीदे थे, दिलावर शाह, नबील हयात और अब्दुल्ला के लिए। अपनी पसंद से उसने ब्लैक कलर का मग दिलावर शाह के लिए सिलेक्ट किया था, जबकि अब्दुल्ला का नेवी ब्लू कलर और नबील हयात का चॉकलेटी कलर में था। उनके कलर्स मुख्तलिफ लेकिन डिज़ाइन और शेप एक जैसे ही थे, जो उन तीनों को बहुत पसंद आए थे। और यही वो मग था जिसमें पहली मर्तबा उसने कॉफ़ी बनाकर दिलावर को दी थी और वो पहली मर्तबा ही चौंक गया था। उसे उस मग से लिपटी खुशबू और चाहत का एहसास हो गया था और फिर ये एहसास हमेशा बढ़ता ही रहा। जब भी वो तीनों दोस्त उनके घर में इकट्ठे बैठे थे तो निगारिश और जरी उन्हें उन्हीं में कॉफ़ी या चाय बनाकर देती थी। और जब से दिलावर और नबील पाकिस्तान गए थे, अब्दुल्ला ने भी अपने मग में कॉफ़ी पीना छोड़ दिया था। इसलिए निगारिश ने वो तीनों मग साफ करके लाउंज के रैक में सजा दिए थे और आज जरी को ख्याल आया कि वो ये मग पैक करके दीगर सामान में रख दे, ताकि पाकिस्तान जाकर वो लोग फिर अपनी कॉफ़ी की याद ताज़ा कर लेते। लेकिन 2 मग पैक करने के बाद जब उसने तीसरे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो न जाने क्या हुआ, वो बिला वजह ही उसके हाथों से फिसल गया, जिसका सदमा उसे हिचकियों से रुला गया। जरी प्लीज़ कंट्रोल मेरी जान, अब इतनी सी बात पे क्या रोना, कांच की चीज़ तो होती ही टूटने के लिए है। निगारिश ने आगे बढ़ के उसे अपने साथ लगा लिया। भाभी, इस कांच की चीज़ में मेरी मोहब्बत का पहला लम्स, पहला एहसास बसा था। बिखर गया वो एहसास, गिर कर टूट गया। जरी का दिल यूं था जैसे किसी ने अपने हाथों की दोनों मुट्ठियों में बड़े ज़ोर से भींच रखा हो, जिससे उसके दिल का दम घुट रहा था और जान टूट रही थी। अरे नहीं पागल, अब अपनी मोहब्बत को इस बेजान चीज़ से तो मशरूत मत करो। मोहब्बत किसी की निशानियों की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत निशानियों की नहीं लेकिन एहसास की मोहताज तो है ना, और इस कांच के मग में तो मेरी मोहब्बत के कई एहसास पोशीदा थे। ये एहसास बिखरे हैं तो मेरा दिल भी तो बिखरेगा ना।
जरी के दिल पे मुमकिन दुख के अल्हाम उतर रहे थे और उसकी कैफियत कुछ ऐसी हो रही थी कि जैसे देखकर निगारिश का दिल भरने लगा। प्लीज़ जरी संभालो खुद को, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मग ही टूटा है। हम दिलावर भाई के लिए नया और उससे ज़्यादा अच्छा मग ले आएंगे जो तुम्हारी तरफ से उनके लिए गिफ्ट होगा। नहीं भाभी, ये सिर्फ मग नहीं टूटा, इस मग के साथ तो बहुत कुछ टूटा है। लोग कहते हैं कि जब कांच की कोई चीज़ टूटती है तो समझो कोई अनहोनी होने वाली है। और आप ये जानती हैं कि मेरा दिल कोई भी अनहोनी सहने वाला दिल नहीं है। इधर कुछ होगा, इधर ये मर जाएगा। वो रो रही थी, बिलक रही थी और निगारिश उसे बच्चों की तरह संभाल रही थी। जरी, सिर्फ 3-4 रोज़ की बात है, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान जाएंगे तो तुम्हारे सारे वहम और वसवसे दूर हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। निगारिश अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए उसे तसल्ली दे रही थी। लेकिन आजकल न जाने क्यों जरी के दिल की इतनी अजीब सी कैफियत हो रही थी कि लाख समझाने और बहलाने से भी नहीं बहल रहा था। बहुत देर बाद वो चुप हुई थी और रो धो कर लाउंज में बिखरे कांच के टुकड़े उठाने लगी, लेकिन ये कांच के टुकड़े उठाते हुए उसका दिल लहू लहान हो रहा था। मगर वो बमुश्किल जब्त करती हुई टुकड़े समेट कर अपने बेडरूम में आ गई। यहाँ उस वक्त 9:15 बजे का वक्त था और पाकिस्तान में रात 2:15 बज रहे थे। पाकिस्तान में रात के 2:15 बजे ऐसा क्या हुआ जिसने जरी के दिल को अपनी मुट्ठियों में लेकर बुरी तरह मसल डाला था। जरी के पाँव के तलवे ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। वो इज़्तिराब के मारे दाएं बाएं चकरा रही थी। उसके दिलो दिमाग पे बेकली और बेचैनी सवार होने लगी थी, लेकिन वो फिलहाल ये मालूम नहीं कर सकी आखिर हुआ क्या है। यूँ बैठे बैठे उसके दिल की हालत इतनी गैर क्यों होगी। ये सिर्फ मग टूट जाने पे तो ऐसा नहीं हो सकता था। जरी हर तरफ से बेबस होकर खिड़की में आ खड़ी हुई। बाहर मौसम बहुत सर्द हो रहा था और उसके अंदर आतिश दहक रहा था, शोले उगलता हुआ, और जरी उस ठंडे और गर्म मौसम की जिद में खड़ी सब कुछ अपने दिल पे सहार रही थी, बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ। 15 नवंबर का सूरज तुलू हो चुका था। लीज़ा अफंदी और दिलावर शाह ने रात जाग के गुजारी थी। एक ही बेड में आमने सामने बैठकर आंखों आंखों में रात बीत गई थी और उसी रात में यूं लग रहा था जैसे दोनों की ज़ात बीत गई थी। एक सिरा लीज़ा अफंदी के हाथों में था और एक सिरा दिलावर शाह के हाथ में। वो सारी बातें और सारे सबूत उस पर वाज़े कर चुका था जिनको जानने और देखने के बाद लीज़ा अफंदी चुप हो गई थी, बल्कि चुप लग गई थी। चुप का ताला लग गया था और उस ताले की कुंजी और उसे खोलने का इख्तियार अब सिर्फ दिलावर शाह के पास था। तो क्या उस एक रात में वो सारे इख्तियार दिलावर शाह को सौंप चुकी थी? उसने अपना सब कुछ उसके हाथ में दे दिया था। वो जो भी चाहता कर सकता था। तो इसका मतलब था कि गुज़िश्ता रात महज एक रात नहीं थी बल्कि क़यामत की रात थी। और उस क़यामत की रात ने लीज़ा अफंदी के साथ के सारे गरूर छीन लिए थे, उसकी मासूमियत को धजी धजी बखेर डाला था। उस रात के बाद वो तो लीज़ा अफंदी के कदमों की खाक भी नहीं रही थी। उसके सारे नाज, सारे गरूर मिट्टी में मिल गए थे। वो आज मुंह के बल गिरी थी और ये गिरना तो उसे तोड़ के रख गया था। वो उठने और संभलने के काबिल नहीं रही थी और उसी गुमसुम हालत में सुबह होगी। सुबह के इंतज़ार में बैठा दिलावर शाह आहिस्तगी से उसके बेड से उठ खड़ा हुआ और फिर गुमसुम बैठी अलीज़ा के सामने अपना मजबूत हाथ फैला दिया। अलीज़ा उसके हाथ को देखते हुए चौंकी थी, बल्कि अपने सामने फैले हुए उसके हाथ का मफहूम समझते हुए खामोशी से उसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया और दिलावर ने अपने हाथ के ज़ोर पे उसे बेड से उठने में मदद दी और फिर बड़ी एहतियात से उसे अपने साथ लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ। अलीज़ा उसके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होने का मतलब भी समझ गई थी, यानी वो उसे फ्रेश देखना चाहता था। और अलीज़ा उसके चाहने के मुताबिक अपने चेहरे को टिश्यू से साफ करते हुए बालों में ब्रश फेरने लगी और यूं ही बालों में फेरते हुए अचानक उसकी नज़र टेबल पे रखे उन गिफ्ट्स की सिमत उठी थी जो कल उसे सब लोगों और कज़न्स ने दिए थे और जो उसने अभी तक खोल कर देखे ही नहीं थे। और उन्हीं गिफ्ट्स में गोल्डन रैपर और गोल्डन रिबन से सजा हुआ आसिर अफंदी का गिफ्ट भी हनूज पैकिंग में बंद पड़ा था। देर हो रही है हमें, दिलावर शाह ने घड़ी देखते हुए उसे मतवज्जे किया और अलीज़ा को उन गिफ्ट से नज़रें चुरानी पड़ी। बाल समेट कर वो उसकी सिमत पलटी। उसकी ड्रेसिंग अलबत्ता रात वाली ही थी, वही स्याह सूट, किसी की किस्मत से भी ज़्यादा स्याह। उसी ड्रेस के नीचे उसने स्याह सैंडल पहने थे और सैंडल्स के स्ट्रिप्स बंद करने के बाद वो सीधी खड़ी हो चुकी थी। चने, वो काफ़ी संजीदगी से पूछ रहा था, लेकिन अलीज़ा को जवाब देने में बड़ी दिक्कत हुई थी। चने, उसकी आवाज़ थी या हवा का धीमा झोंका जो गैर महसूस अंदाज में छू के गुजर गया। और दिलावर शाह ने उसके बराबर खड़े हुए अपना दायां बाजू उसके कंधों के गिर्द हमायल कर दिया और वो नाजुक कांच की गुड़िया उसके बाजू के हसार में आ गई थी। और तब दिलावर शाह ने अपने नंबर से कॉल मिलाई थी, उसी हवेली के एक नंबर पे।
वकार अफंदी डाइनिंग हॉल में बैठे अपने उलझे बिखरे और मुंतशिर से जहन को अखबार की सुर्खियों में गुम करने की कोशिश कर रहे थे जब टेबल पे रखे उनके सेल पे रिंग बजी और इस कदर अचानक और गैर मतवक्के अंदाज में बजी थी कि अखबार उनके हाथ में लरस गया। हालांकि ये लर्जिश तो उनके हाथों में रात से ही हो रही थी, उस वक्त तो रिंग टोन का महज बहाना बना था। उन्होंने जल्दी से सेल उठाकर देखा, नंबर वही रात वाला था जिससे उन्हें वो मैसेज मौसूल हुआ था और वो उसी नंबर से कॉल देकर अंदर से ठठर के रह गए थे। लेकिन कॉल करने वाले को जानने के लिए कॉल रिसीव करना बेहद ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने फ़ौरन कॉल रिसीव कर ली थी। हेलो, कौन? इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद वकार अफंदी के लहजे में खौफ बोल रहा था। तुम्हारा दामाद। कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो? वकार अफंदी उस वक्त मुश्तइल होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुश्तइल हो रहे थे। मैं वही हूँ जिसे तुम इतने अरसे से अंदर ही अंदर पागलों की तरह तलाश कर रहे हो और तुम्हारी बेटी मुझे पहलू में लिए फिर रही है। उस आवाज़ में तंज था, तमस्खर था, ऐसा सब कुछ था जिससे वकार अफंदी की हस्ती तड़प उठती। यकीन नहीं आता तो अपनी बेटी के बेडरूम में आकर देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इतना कहने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और वकार अफंदी पागल हो उठे थे। अलीसे का ख्याल आते ही उनका दिल मुट्ठी में आ गया। वो सेल और अखबार वहीं छोड़ के यकदम उठकर लपके, जिसकी वजह से उन्हें कुर्सी से ठोकर भी लगी थी। वो बामुश्किल गिरने से बचे क्योंकि भर वक्त दूसरी कुर्सी के बैग का सहारा ले लिया था, लेकिन वो 2 मिनट संभलने के लिए भी नहीं ठहरे। उन्हें लग रहा था कि जैसे बहुत देर हो चुकी है। वो 1 सेकंड के अंदर अंदर अलीसे के बेडरूम तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन बड़ी हवेली के 3 पोर्शंस का तवील तरीन जीना तय करते हुए उनकी सारी हिम्मतें जवाब दे रही थीं। उनका हर कदम शिकस्तगी की सिंध पड़ रहा था और अपने बेडरूम से निकलते आजिर ने उनको देखा और वो यही समझा कि डैड यकीनन अलीसे के बेडरूम में उसे जगाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए ज़रा लापरवाही से काम लेते हुए नीचे उतर आया और वकार अफंदी ऊपर अलीसे के बेडरूम के सामने पहुंच गए। बेडरूम के दरवाजे पे हाथ रखते हुए उनका हाथ कांप रहा था और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए थे उनकी आंखें फट गई थीं। सामने का मंजर क़यामत से कम नहीं था। उस मंजर में हशर बरपा थे, क्योंकि अलीसे जिसके बाजू के हसार में खड़ी थी वो कोई और नहीं, उनके अपने घर का मुलाजिम और अलीसे का ड्राइवर मंसूर हुसैन था। मंसूर हुसैन? वकार अफंदी के दिमाग की रगें तन गई, जबकि दिलावर शाह की मोटी मोटी आंखों में सुर्ख डोरे हलकोरे लेने लगे थे। गज़ब उसके चेहरे के नैन नकोश में उतर आया था, लेकिन फिर ये सोचकर कि जब अलीसे उसकी थी, उसके साथ थी, तो फिर ये गैज़ो गज़ब भला किस लिए? उसने अपने अंदर के बफरे हुए ज़ख्मी शेर को सुला दिया था, थपक दिया था थोड़ी देर के लिए। मंसूर हुसैन नहीं, मंसूर हुसैन का पोता हूँ मैं, मंसूर हुसैन शाह का पोता और बाबर शाह का बेटा दिलावर शाह हूँ मैं, दिलावर शाह। उसने अपनी सिमत उंगली से इशारा करते हुए चुबा चुबा कर इतने ठोस और रटन अंदाज में तारुफ करवा दिया कि उसके तारुफ में कोई शक नहीं रह गया था। और वकार अफंदी खड़े खड़े उस बड़ी हवेली के 3 पोर्शन से नीचे गिरे और हवेली की मजबूत तरीन इमारत के मलबे तले दब गए थे, जहाँ से निकलना अब उनके बस की बात नहीं थी। दिलावर शाह? यूं जैसे उनके होंठों ने उसका नाम लेने की कोशिश की थी, हल्की सी जंबिश के साथ। हाँ, दिलावर शाह, तुम्हारी बेटी का ड्राइवर नहीं, तुम्हारी बेटी का शौहर, जिसकी तस्दीक के लिए तुम निकाह नामा भी देख सकते हो और तसल्ली के लिए अपनी बेटी से भी पूछ सकते हो, बल्कि यहाँ ही नहीं, तुम इसे अकेले ले जाकर भी पूछ सकते हो। मेरी तरफ से इजाज़त है। दिलावर शाह ने वकार अफंदी के मलबे तले दबी हुई लाश को और भी ज़मीन के अंदर दबा दिया था, लेकिन एक लाश नुमा फनाशुदा वकार अफंदी ने न जाने किस तरह अलीसे की सिम देखा था कि उनकी सवालिया नज़रों के सवाल पे अलीसे ने आहिस्तगी से सर झुका लिया। जी पापा, ये सच है, मैं इससे शादी कर चुकी हूँ, मेरा इसके साथ निकाह हो चुका है, अब ये मेरा शौहर है। पहले आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे आपके रिएक्शन का पता था, लेकिन आज इसलिए बता रही हूँ कि मैं आज अपनी मर्ज़ी अपनी रज़ा से यह हवेली छोड़कर अपने शौहर के साथ उसके घर जा रही हूँ। लिहाजा मुझे रोकने की और मेरे सामने रुकावट बनने की कोई भी कोशिश ना करे, आप ना कोई और। अलीसे अफंदी की आवाज़ पे जहाँ आसिर अफंदी के कदम दरवाजे में ही रुके थे, वहीं वकार अफंदी के शरियानों में गर्दिश करता खून भी रुक गया था। नब्ज़ें थमने लगी थी और दिल बंद हो रहा था। चेहरे पे मर्ग का आलम था और उसी आलमे मर्ग में आसिर अफंदी भी दम बखुद और शस्त्र सा खड़ा था। वो अभी अभी नीचे डाइनिंग हॉल में गया था और वहाँ गिरा हुआ अखबार और डैड का सेल देखकर वो चौंक गया और जैसे ही सेल चेक किया तो रात वाला मैसेज सामने आया था। तभी वो परेशानी से पलटा और उनके पीछे चला आया, लेकिन अलीसे के बेडरूम के दरवाजे में पहुंचकर उसके कदम ज़मीन ने जकड़ लिए थे और उसमें कुछ भी कहने की सलाहियत नहीं रही थी।
आजिर अफंदी की समातों के पर खच्चे उड़ गए थे। वो फटी फटी आंखों से कभी अलीज़े को और कभी दिलावर शाह को देख रहा था, जो उसकी नज़र में अब भी मंसूर हुसैन ही था। अलबत्ता मंसूर हुसैन की असलियत क्या थी ये तो सिर्फ वकार अफंदी ही जानते थे। चलें, दिलावर शाह ने अलीज़े से कहते हुए वकार अफंदी और आजिर अफंदी की सिम देखा। अलीज़े ने आहिस्तगी से सर हिलाया और फिर दिलावर शाह के बढ़ते हुए कदम के साथ कदम मिलाना पड़ा। मंसूर हुसैन। आजिर उनके दरवाजे की सिमत बढ़ते देखकर एकदम पफर गया। खबरदार आजिर अफंदी, अपनी जगह से 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से छलनी कर दूंगा। दिलावर शाह ने यकदम रिवॉल्वर सामने करते हुए उसे मुंजमद कर डाला। वो उन सबको बेबस करने के पूरे इंतजाम करके आया था। अलीज़े उसके रिवॉल्वर की जिद में आजिर अफंदी को देखकर थक से रह गई। प्लीज़ आजिर भाई, मैंने आपसे कहा ना कि आप भी मेरे रास्ते की रुकावट ना बने, तो फिर क्यों आप खामखा हंगामा करना चाहते हैं? हर लड़की अपने शोहर के साथ जाती है, मैं भी जा रही हूँ, प्लीज़ आप रोकने की कोशिश मत करें। अलीज़े ने काफ़ी सख्त लहजे में आजिर को मना कर दिया और आजिर साकित व सामित रह गया। अलीज़े, वो बेयकीनी से बोला, मर चुकी है आपकी अलीज़े, मैं अब आपकी अलीज़े नहीं हूँ मैं आपकी अलीज़े। वो भी एकदम बिखर गई थी। उसकी आंखों में उमड़ते आंसू आजिर ने वाज़े महसूस किए थे, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कर सका था। दिलावर शाह उसे साथ लेकर बेडरूम से निकल गया। अलीज़े, वकार अफंदी के मुंह से महज उसका नाम सुनाई दिया था और वो खड़े कद से एकदम तेवरा के नीचे ज़मीन पे आ गिरे। डैड, उन दोनों के पीछे निकलता आजिर एकदम वकार अफंदी के गिरने की आवाज़ सुनकर उनकी सिमत लपका। अलीज़े, डैड। आजिर दोजानो नीचे ज़मीन पे बैठते हुए अपनी पूरी कुव्वत से चीखा था। अलीज़े, डैड मर जाएंगे। आजिर ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था और उसके चीखने की आवाज़ बाकी घर वालों के साथ साथ सीढ़ियाँ उतरती अलीज़े भी सुन चुकी थी। तभी दिलावर शाह के हाथ में दबा उसका हाथ कांपा था और कदम ठटक के रुके थे, लेकिन दिलावर शाह ने उसे रुकने नहीं दिया और वो चाहकर भी रुक नहीं सकी थी। और उन दोनों को सीढ़ियाँ उतरते देखकर पूरा घर जैसे पत्थर का हो गया था। जोदत, कोमल, दानियार, अहमद, आसिया अफंदी, सरबत बेगम, इसरार अफंदी, सब के सब अपनी अपनी जगह पे पत्थर के बुत हो गए थे और ऊपर से आजिर के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए दिलावर शाह सीढ़ियाँ उतरकर कॉरिडोर की सिमत पड़ गया और अलीज़े उसके साथ घसीटती हुई जा रही थी। वो उसे साथ लिए कॉरिडोर से बाहर रविश पे निकल आया। गुलाब खान, गाड़ी अंदर लेकर आओ। उसने महज 2 सेकंड की कॉल की थी और गेट पे उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देने लगा। जैसे ही आरिफ ने गेट खोला, उसकी चमचमाती हुई सर बड़ी हवेली के रविश पे आ खड़ी हुई, जिसकी ड्राइविंग सीट पे गुलाब खान बराजमान था, मुस्तैद और चौकस। मंसूर हुसैन, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या बदतमीज़ी है? मुबारक खान अपने क्वार्टर से निकलकर उधर ही आ रहा था, लेकिन दिलावर शाह के हाथ में दबोचा हुआ अलीज़े का बाजू देखकर ठटक गया। खबरदार, ज़्यादा हमदर्द बनने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं खड़े रहो। दिलावर शाह ने उसकी सिमती रिवॉल्वर तान लिया और मुबारक खान के साथ चौकीदारी पे मामूर आरिफ भी चौंक गया। मंसूर हुसैन, तुम ये सब क्यों? मुबारक खान ने कुछ कहना चाहा। मैं मंसूर हुसैन नहीं, तुम्हारे अलीज़े बीबी का शौहर हूँ, समझे तुम? दिलावर शाह ने जिस अंदाज में कहा था उस पर मुबारक खान और आरिफ हक्का बक्का रह गए। अलीज़े बीबी का शौहर? हाँ, इसीलिए तुम्हारी अलीज़े बीबी को अब अपने साथ अपने घर लेकर जा रहा हूँ। उसने कहते हुए जिन नज़रों से अलीज़े की सिम देखा था, वो अपने कदमों पे खड़ी नहीं रह सकी थी। एकदम लड़खड़ा के उसका जिस्म बेजान होने लगा। वो दिलावर शाह के हाथ से मुट्ठी में दबी रेत की मानित फिसलने लगी थी और इससे पहले कि वो ज़मीन पोस हो जाती, दिलावर ने उसे बाहों में संभाल लिया। पापा। बेहोशी की वादी में उतरते हुए अलीज़े के लबों ने अपने बाप को ही पुकारा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वकार अफंदी बहुत पीछे रह गए थे, बहुत पीछे। गुलाब खान, दरवाज़ा खोलो। दिलावर शाह ने उसे इशारा किया और गुलाब खान ने 1 सेकंड की फुर्ती से दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दिलावर शाह अलीज़े को बाहों में उठाकर गाड़ी की सिमत बढ़ा था, आरिफ ने एकदम उस पर बंदूक तान ली। मैं तुम्हें अलीज़े बीबी को ऐसे नहीं ले जाने दूंगा, तुम यहाँ से एक कदम भी नहीं हिल सकते। आरिफ एक वफादार मुलाजिम था, तभी तो उसके सामने डट गया और मुबारक खान आरिफ की जहानत पे पहले चौंका, फिर खुश हुआ था। दिल ही दिल में उसे शाबाश दी। अगर मैं यहाँ से ना गया तो तुम्हारी अलीज़े बीबी की यहाँ से लाश जाएगी। दिलावर शाह ने गुलाब खान की सिमत इशारा किया, जिसने रिवॉल्वर अलीज़े की कनपट्टी पे रख दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते मंसूर हुसैन। मुबारक खान अलीज़े बीबी के लिए तड़पा था। अपने मतलब के लिए अगर मैं खैरू बाबा पे गोली चला सकता हूँ तो तुम्हारी अलीज़े बीबी की खोपड़ी भी उड़ा सकता हूँ। मेरे मुलाजिम तुम लोगों से भी ज़्यादा वफादार हैं। अभी इशारा करूँ तो तुम अपने कदमों पे खड़े भी नहीं रह सकोगे। तुम गोली चलाते हुए फिर भी डर जाओगे, लेकिन मेरे मुलाजिम नहीं डरेंगे। मैं खुद न डरूँ तो मेरे मुलाजिम भी न डर हैं।
दिलावर शाह का एक एक लफ्ज़ सर्दो सपाट और जहर में बुझा हुआ था, जिसे सुनकर वो साकित हो गए थे। खैरू बाबा पे गोली तुमने चलाई थी? मुबारिक खान पागल हो जाने की हद तक हैरत ज़दा हो रहा था। हाँ, मैंने चलाई थी, तुम सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो तमस्खराना अंदाज में हंसा था और उन दोनों के चेहरों पे हवाइयाँ उड़ने लगीं। सुबह सुबह ऐसे इंकशाफात पे अकल मफलूज हो गई थी। दिलावर ने आगे बढ़ के अलीज़े को गाड़ी में डाला और फिर खुद भी गाड़ी में सवार हो गया। गुलाब खान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए ज़रा सा बैक किया। मैंने कहा था ना आरिफ, परसों तुम्हें इस हवेली में दूर दूर तक कोई भी टहलता हुआ दिखाई नहीं देगा, कोई शानो शौकत नहीं रहेगी यहाँ। दिलावर ने खिड़की का शीशा फोल्ड करते हुए उसे याद दिलाया था और फिर मुस्कुराते हुए उनको आखिरी सलाम किया, हाथ माथे तक ले जाकर रब रखा और फिर उसके बाद उसकी गाड़ी फिसलती हुई गेट से बाहर निकल गई। मुबारिक खान और आरिफ बेयकीन से खड़े थे क्योंकि मंसूर हुसैन वहाँ से जा चुका था, लेकिन अपने पीछे एक क़यामत छोड़ गया था। ऐसी क़यामत जो बड़ी हवेली के दरो दीवार पे पहले कभी नहीं उतरी थी और जब उतरी थी तो बुनियादें भी हिला के रख गई थी। वक़ार अफंदी की हालत में वो अलीज़े वाली हैरत और बेयकीनी भी भूल गए थे। उन्हें वक़ार अफंदी की ज़िंदगी की फ़िक्र लाहक हो चुकी थी। हवेली के अंदर शोर मचा हुआ था, किसी को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। फिलहाल उनकी यही कोशिश थी कि वक़ार अफंदी को जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। इसीलिए मुबारिक खान को पहला ऑर्डर गाड़ी निकालने का ही मिला और उसके पीछे कई और गाड़ियां भी तैयार थीं। मदिया ने रात जाग कर गुजारी थी। बेशक वो उस लड़की की खातिर ही जागने के लिए बैठी थी, लेकिन ध्यान उसका अदील उमर की तरफ ही भटकता रहा था। उसका ध्यान पलट पलट कर चाइना वर्कशॉप में काम करते अदील उमर की तरफ जाता और वहाँ जाकर बेबस हो जाता, क्योंकि इसे वर्कशॉप से निकालना बेहद मुश्किल काम था। बेशक उसकी उससे बहुत मुख्तसर और कम मुलाकातें हुई थीं, लेकिन फिर भी वो जान चुकी थी कि वो कितना खुददार है और उसकी यही खुददारी मदिया के हर ध्यान के आड़े आ रही थी। उसे पता था कि वो उसे कभी कुछ भी नहीं करने देगा, जबकि वो उसे न जाने कि उस वर्कशॉप में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शायद उसके अंदर हमकते जज्बे का पहला तकाजा ही यही था। महबूब को हालत शहनशाही में देखना, अपने महबूब को फ़कीराना हालत में भला कौन बर्दाश्त कर पाता है। हर साहिब मोहब्बत और साहिब जज्बा अपने महबूब के लिए ताजमहल के ख्वाब ही देखता है। सो वो भी देख रही थी। हालांकि मोहब्बत के वजूद से इनकारी तो अब भी थी और सोच की तान उसे जुमले पर आकर टूटती थी। मैं और मोहब्बत, वो भी अदील उमर से? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। और जहाँ उसकी सोच की तान टूटती थी, वहीं उसकी मोहब्बत का धागा मजबूत से मजबूत तर होता था। बेशक वो इतराफ़ नहीं करती थी, लेकिन उस हकीकत का इदराक तो उस पर भी हो चुका था कि अदील उमर उसके दिल का किला तस्खीर कर चुका है। 4-6 मुलाकातों में ही पता पा गया था, लेकिन बस मसला ये था कि हर इंसान की तरह फितरी तौर पर उसके लिए भी हार मानना मुश्किल था। इसलिए वो मान ही नहीं रही थी। हालांकि जो होना था वो हो चुका था, बाकी तो कुछ नहीं रहा था सवाए नाम नेहात खुदसरी के। वो खुदसर थी और वो खुददार था और मसला भी बस यही था। दोनों अपनी अपनी ज़ात में सर बुलंद रहना चाहते थे, इस बात से बेखबर कि मोहब्बत तो झुकी गर्दनों का हार है, उन्हीं पे सजना पसंद करती है। उस लड़की की कराप पे उसने एकदम चौंक कर देखा। रात की स्याही दिन के सुनहरे उजालों में तब्दील हो रही थी। सुबह 6 बजे का वक्त था। वो लड़की होश में आ चुकी थी और जैसे उसने सर को हरकत देने की कोशिश की, उसके सर में दर्द की शदीद टीसें उठने लगी थी, दर्द फैलने लगा था। हेलो, गुड मॉर्निंग। मदिया ने उसे मतवज्जे करने के लिए उसे विश किया और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक उस लड़की ने मदिया के सिम चौंक कर देखा। उसकी खाली खाली आंखों में हैरत और उलझन के तासुरात उभरने लगे थे, क्योंकि उस कमरे का माहौल और मदिया का चेहरा उसके लिए यकसर अजनबी था। वो अनजान थी और बेयकीन भी। उसकी बेयकीनी मदिया की समझ से बालातर थी। कैसी हैं आप? कैसा फील कर रही हैं? मदिया ने बड़ी बुर्दबारी से काम लेते हुए पूछा, लेकिन वो लड़की शायद जवाब देने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उसकी चुप, उसकी बेयकीनी, उसकी हैरत और उसकी उलझन हनूस थी। देखिए मिस, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे कुछ पूछ नहीं हूँ। अब कैसी तबीयत है आपकी? मदिया ने अब की बार काफ़ी नपे तले और दो टोक से लहजे में पूछा और वो लड़की फिर भी जवाब देने के बजाय उठने की कोशिश करने लगी, जिस पे मदिया को खासा गुस्सा आया। स्टॉप इट, मैंने आपको यहाँ से उठने के लिए नहीं कहा, आपकी तबीयत पूछी है। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ, जिंदा हूँ, आपको भी नज़र आ रहा है, बस रात गुजर गई। आपकी बड़ी मेहरबानी, अब मुझे जाने दीजिए। उस लड़की ने बोलकर मदिया को हैरान परेशान कर दिया था। इतनी तलखी थी उसके लहजे में कि मदिया देखती रह गई। इतने में नबील भी दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया। गुड मॉर्निंग। वो भी वक्त से पहले ही उठ गया था। उससे भी रात से उस लड़की की तरफ से परेशानी लाहक हो रही थी। अरे आप कहाँ जा रही हैं? नबील उस लड़की को बेड से उतरते देखकर चौंक गया। इस शहर की सड़कों पे, इस शहर की गलियों में वो लड़की इस हद तक तल्ख होगी, उन दोनों बहन भाई को अंदाज़ा नहीं था। इसीलिए अब एक दूसरे को देखकर रह गए। क्यों, आपका घर नहीं है क्या? मेरा घर होता तो मैं सड़कों पर यूँ मारी मारी ना फिर रही होती।
کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کا گھر کیوں نہیں ہے؟ میرا گھر اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرے پاس عزت نہیں ہے، عزت دار لڑکیوں والا غرور نہیں ہے، میرا ریپ ہوا ہے، میری عزت لوٹی گئی ہے، مجھے برباد کیا گیا ہے، اور پھر بھی میرا مجرم ہر جگہ دندناتا پھر ہے، کوئی اسے اس کے انجام تک پہنچانے والا نہیں ہے، اور میں جب اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہوں تو بے گھر کرتی جاتی ہوں۔ میرے اپنے گھر والے مجھے اپنے گھر میں رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور آپ جان سکتے ہیں جس لڑکی کا بوجھ اپنے گھر والے نہیں اٹھا سکتے اس کا بوجھ دوسرے لوگ کیسے اٹھا سکتے ہیں بھلا؟ میں تو ایسی مصیبت بن گئی ہوں کہ پولیس والوں سے بھی سنبھالی نہیں جا رہی، اور آپ کے گھر سے اس لیے جا رہی ہوں کہ ساری حقیقت جاننے کے بعد آپ نے بھی تو مجھے اپنے گھر سے نکالنا ہی ہے نا، تو پھر کیوں نہ میں خود ہی چلی جاؤں۔ اس لڑکی کی بیان کی گئی حقیقت اور اس کے سوال پہ ان دونوں کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مدیہ کا رنگ سفید لٹھے کی مانند ہو چکا تھا، وہ چکرا گئی تھی، اور خود نبیل کے ماتھے پہ بھی پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ ماہ نومبر کی ایک سرد صبح میں ماتھے پہ پھوٹتے پسینے کے قطرے دماغی انتشار کا نتیجہ اور باقاعدہ ثبوت دے رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کی سمت دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ بھی تو ایک مرد تھا اور دوسرے کسی مرد کی درندگی اور ہوس پہ شرمسار اور نادم تھا۔ اس لڑکی سے نظر ملانے کی ہمت نہیں رہی تھی، اور وہ ان دونوں کو خاموش اور گمسم سا دیکھ کر بامشکل بیڈ کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی، اور نقاہت زدہ کمزور قدموں کو بڑی ہمت مجتمع کر کے زمین پہ جماتی ہوئی دروازے کی سمت بڑھی۔ وہ نبیل کے سائڈ سے ہو کر گزری تھی اور دروازے کے ہینڈل پہ رکھتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ ٹھہریے، نبیل کی آواز متوازن اور لہجہ مضبوط تھا۔ مدیہ اس کے انداز پہ چونکی، اسے ادراک ہو چکا تھا کہ نبیل کوئی فیصلہ کر چکا ہے۔ آپ یہیں رہیں گی، کہیں نہیں جائیں گی، میں دوں گا آپ کو تحفظ تب تک جب تک میں زندہ ہوں۔ آپ کو اس گھر سے نہ کوئی نکالے گا نہ آپ نکل سکتی ہیں، یہ میرا وعدہ ہے، نبیل حیات کا وعدہ۔ نبیل کی زندگی کا یہ شاید پہلا وعدہ تھا جو اس نے کسی سے کیا تھا، وہ بھی اتنے مضبوط اور اٹل انداز میں۔ وہ لڑکی اسے دیکھتی رہ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پہ رکھا اس کا ہاتھ لرز گیا تھا، جبکہ مدیہ نہ جانے کیوں وہاں سے روتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ حالانکہ نبیل حیات کے فیصلے پہ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے بھائی پہ فخر ہوا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اسے اپنی دوست میری کا دکھ بھی رلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی تو ریپ ہوا تھا، اس کی عزت بھی تو لوٹی گئی تھی، اسے بھی برباد کیا گیا تھا۔ مدیہ روتی نہ تو اور کیا کرتی؟ دلاور شاہ کی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس کے ملازم زلفی نے فوراً گیٹ کھول دیا، اور گلاب خان ایک جھٹکے سے گاڑی اندر روش پہ لے آیا تھا، اور گیٹ بند کر کے زلفی بھاگتا ہوا گاڑی تک آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ سلام صاحب، اس نے دلاور کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر احتراماً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو زلفی؟ ٹھیک ہوں صاحب، آئیے اندر آئیے نا۔ زلف خان عرف زلفی گلاب خان کی بیوی گل کا بھائی اور گلاب خان کا سالہ تھا، عمر میں 15 سال کا لیکن مزاج میں 30 سالہ سنجیدگی رکھتا تھا۔ دلاور شاہ کی غیر موجودگی میں گلاب خان پہ کافی ذمہ داریاں تھیں، جن کی وجہ سے اسے اکثر و بیشتر گھر کے کام نپٹانے کی غرض سے گھر سے باہر بھی جانا پڑتا تھا، اور گل کو گھر میں اکیلے رہنا پڑتا۔ اس لیے دلاور شاہ کی پرمیشن پہ زلفی کو یہاں لایا گیا تھا۔ زلفی 1-2 بار پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، اس لیے دلاور شاہ کو اس کے بارے میں پتہ تھا، تبھی اس کے آنے پہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور آج زلفی بھی اسے اتنے دنوں بعد دیکھنے پر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے دلاور شاہ کا مزاج، اس کی شخصیت، اس کا رہن سہن سب بہت پسند تھا۔ وہ دلاور شاہ کو آئیڈیلائز کرتا تھا، لیکن دل ہی دل میں آ رہا ہوں یار، آ رہا ہوں۔ دلاور گاڑی سے اتر آیا، لیکن اس کے اترنے کے بعد جیسے ہی زلفی کی نظر گاڑی کے اندر کی، وہ ساکت اور مبہوت رہ گیا۔ وہ لڑکی تھی یا پھر سرتاپا حسن کا مجسمہ، یا پھر ہوش ربا قیامت، یا کسی ریاست کی شہزادی، یا پھر کوہ کاف کی راہ بھٹکی ہوئی پری۔ وہ جو کچھ بھی تھی، دلاور شاہ نے اسے بڑی لاپرواہی، بڑی بے دردی اور بڑی کمال بے نیازی سے اپنی گاڑی کی سیٹ پہ ڈال رکھا تھا۔ گلاب خان، بیسمنٹ کا لاک کھول دو جا کر، دلاور شاہ نے بے ہوش پڑی علیزے کو گاڑی سے نکالتے ہوئے اپنا اگلا حکم جاری کیا۔ بیسمنٹ؟ گلاب خان ٹھٹکا، لیکن کچھ کہنے کی جرات نہیں کر سکا، تبھی سر ہلا کر آگے بڑھ گیا، اور دلاور شاہ اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا تھا، لیکن زلفی کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ تو کیا صاحب اتنی خوبصورت لڑکی کو بیسمنٹ میں ڈالنے کے لیے لے کر آیا ہے؟ زلفی کے ذہن میں آنے والا یہ سوال گل کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ وہ کچن سے نکل کر دلاور شاہ کو سلام کرنے کے لیے سامنے آئی تھی، لیکن اس کے حصار میں کسی بے ہوش لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس لڑکی کا ملکوتی حسن ان سب کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ سلام صاحب، وہ بمشکل اسے سلام کر پائی تھی۔ وعلیکم السلام، وہ اسے سنجیدگی سے جواب دیتا ہوا آگے بڑھا، اوپر جانے والی سیڑھیوں کے پیچھے بیسمنٹ کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہ بیسمنٹ نہیں، علیزہ افندی کا قید خانہ تھا، اور دلاور شاہ نے اس قید خانے میں آ کر علیزے کو بڑی بے رحمی سے اپنی باہوں سے جھٹک دیا۔ کسی انتہائی ناگوار بوجھ کی مانند اور یوں زور سے گرنے کی وجہ سے علیزے کا سر زمین سے ٹکرایا تھا، جس پہ وہ بے ہوشی کے باوجود کراہ اٹھی تھی اور اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ پاپا،
جیسے اس کے ذہن میں سارا واقعہ تازہ ہوا، اسے پہلا خیال وقار افندی کا ہی آیا تھا۔ ہاں پاپا۔ وہ نفرت اور حقارت سے دیکھتے ہوئے سر جھٹک کر پلٹ گیا اور علیزہ اس کے قدموں کی چاپ پہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی تھی۔ دلاور سیڑھیوں کی سمت بڑھ رہا تھا۔ ڈرائیور، وہ اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ کر چیخی، ڈرائیور رکو، میری بات سنو، ڈرائیور پلیز۔ علیزہ نے چیختے ہوئے اسے روکنے کی اور خود زمین سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں کام ناکام ہو گئے تھے۔ نہ وہ خود اٹھ سکی تھی، نہ وہ روکا تھا، اور علیزہ چیختی اور روتی بلکتی ہوئی رہ گئی۔ وہ بہت بلند آواز سے چیخ رہی تھی، لیکن یہاں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جیتے جی زندہ سلامت قبر میں اتار دی گئی ہو، اور اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے لیے قبر کھودی کس نے۔ اگر پتا چل جاتا تو وہ واقعی مر جاتی، لیکن فی الحال وہ انجان تھی، اور انجانے میں اور اندھیرے میں سر ٹکرا رہی تھی۔ باہر سب کے لیے صبح تھی، لیکن اس کے لیے ہر طرف رات ہو چکی تھی۔ دلاور شاہ نے قید خانے کا دروازہ بند کر کے دروازے میں تالا ڈال دیا، اور اس قید خانے کے دروازے میں تالا ڈالنے کے بعد واپس پلٹتے ہوئے دلاور شاہ کی چال بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کی چال میں کیا کچھ نہیں تھا، فتح، شکستگی، سرشاری، اذیت، سرخروئی، ندامت، آزادی، لاپرواہی یا پھر اعصاب پہ بوجھ کا احساس، سب کچھ مل کر اس کی چال میں اتر آیا تھا۔ اس کے ایک ایک قدم کے کئی معنی تھے، کئی مفہوم تھے۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلتا ہوا ڈرائنگ روم کے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا، اور اپنا سر صوفے کی بیک سے ٹکا کر اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف موڑ کے گدی کے نیچے رکھتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ ساری رات کی جاگی آنکھوں میں تھکن اور ہر جگہ کی جلن ہونے لگی۔ حالانکہ پوری رات جاگ کر گزارنے کا تجربہ اس کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن اس طرح کا جاگنا آنکھوں میں جلن چھوڑ گیا تھا۔ اگر اس ایک رات میں اس کی آنکھیں جل رہی تھی، تو پھر علیزہ افندی کی آنکھیں تو اس ایک رات میں لہو رس رہی ہوں گی۔ صاحب ناشتہ کریں گے؟ اس کی بند آنکھوں کے پار زلفی کی آواز ابھری تھی، اور دلاور شاہ برسوں کی مسافت سے واپس پلٹ آیا۔ ہاں کروں گا، لیکن اماں کے ساتھ، بس وہ لاہور پہنچنے ہی والی ہیں۔ اس نے گہری سانس کھینچتے ہوئے جواب دیا اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے صاحب، بتا دیتا ہوں گل باجی کو۔ زلفی سر ہلا کر پلٹ گیا۔ صاحب میں نے سارا سامان کمرے میں پہنچا دیے۔ گلاب خان سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم کی طرف آ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور ہاں تمہیں یاد ہے نا میں نے تمہیں کیا تاکید کی تھی؟ جی صاحب یاد ہے، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے۔ زلفی اور گل کو بھی سمجھا دینا، میرے دوست، میرے کولیگز، میرے جاننے والے، کبھی کوئی بھی آئے، کسی کو بھی اس لڑکے کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آپ لوگوں کی کسی بھی حرکت سے یہ احساس نہ ہو کہ یہاں گل کے علاوہ کسی لڑکی کا کوئی وجود بھی ہے۔ اس کی وارننگ واقعی وارننگ ہوتی تھی، اور یہ بات اس کے سارے ملازم بخوبی جانتے تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ جی صاحب جو حکم۔ گلاب خان نے سر خم کر دیا۔ اوکے جاؤ اپنی ڈیوٹی سنبھالو، اماں پہنچنے والی ہی ہوں گی۔ وہ اسے کہتے ہوئے خود صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر پہلے خود پہ غالب آ جانے والے تمام احساسات اور کیفیات کو پرے جھٹک دیا۔ اپنے بیڈ روم میں آ کر اس نے بوٹ اتارے، اپنی جیبیں خالی کی، گھڑی اتار کر رکھی اور نئے پریس شدہ کپڑے لے کر شاور لینے کے لیے چلا گیا۔ اپنے چہرے کو داڑھی سے آزاد کرنے کے لیے اس نے شیو کی، آفٹر شیو لگایا اور پھر اپنی اصلی حالت میں لوٹایا تھا۔ منصور حسین والا رہا ساحت چولا بھی اتار پھینکا تھا۔ شاور لینے اور ڈریس اپ ہونے کے بعد وہ دلاور شاہ کی شاندار شخصیت کو پوری طرح سے اجاگر کرتا ہوا نظر آیا تھا۔ وہی دلاور شاہ، آن اور انا والا۔ وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھی اپنی گھڑی اٹھا کر اپنی مضبوط کلائی پہ باندھ رہا تھا جب باہر گیٹ پہ بطول شاہ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا، اور گھڑی کا لاک بند کرتے ہوئے دلاور شاہ کا ہاتھ کام کیا تھا۔ 22 سال بعد بطول شاہ نے اپنے آبائی شہر لاہور میں قدم رکھا تھا، اور 22 سال بعد رکھے جانے والے اس قدم پہ لاہور کی زمین کا بھی کلیجہ شک ہو گیا تھا۔ دلاور شاہ کے ہاتھ کی طرح جیسے زمین بھی کام کی تھی، شاید اس لیے کہ بطول شاہ کے دل سے اور دامن سے بندھا ہوا دکھ بہت عظیم اور اذیت ناک تھا، جس کا بوجھ صرف بطول شاہ سینے میں دبائے ہوئے پھر رہی تھی، ورنہ یہ بوجھ تو زمین بھی نہیں سہار سکتی تھی جو انہوں نے سہارا ہوا تھا۔ ان کی ہمت اور ان کے حوصلے تو دلاور شاہ سے بھی کئی گنا بڑھ کے تھے۔ وہ بلا شبہ ایک بہادر اور چٹان نما عورت تھی۔ ان کی اتنی مضبوطی اور بہادری پہ تو دلاور شاہ بھی چند ثانیے کے لیے چپ ہو جاتا تھا۔ گاڑی کے ایک ہارن کے بعد دوسرے ہارن کی نوبت نہیں آئی تھی اور گیٹ کھل گیا تھا، اسی لیے دلاور ایک بار پھر اپنے ذہن سے سارے خیالات جھٹک کر بیڈ روم سے باہر آ گیا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا سیڑھیاں بھی اتر آیا۔ ان کی گاڑی سے اترنے تک وہ گاڑی تک پہنچ چکا تھا۔ السلام علیکم اماں۔ اس نے بطول شاہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گاڑی سے اترنے میں ہلکی سی مدد دی، اور بطول شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے بچے، میرے جوان، جیتے رہو، وہ اسے آغوش میں بھینچے ہوئے کافی گلوگیر لہجے میں بولی، اور ان کے دکھ، ان کی اذیت پہ دلاور شاہ کا دل بھی بجھ گیا تھا۔
उस लम्हे उन्हें बाबर शाह की याद आ रही थी, क्योंकि इस लम्हे उन्हें बाबर शाह की सूरत दिलावर शाह में नज़र आ रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे उनके सामने उस वक्त बाबर शाह खड़ा था, सर उठाए, सुरखरू सा अंदाज लिए। मैं खुश नहीं हूँ अम्मा, मेरे सीने की आग पे अभी भी कोई पानी नहीं पड़ा। मैं वकार अफंदी को ज़िंदा छोड़ आया हूँ। मुझसे ये एहसास बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं वकार अफंदी को ज़िंदा छोड़ आया हूँ। वो अभी तक जी रहा है, वो सांस ले रहा है, वो अभी भी ज़मीन के अंदर नहीं, ज़मीन से बाहर है। मैंने जब जब उसे देखा है मर मर के जिया हूँ। दिल चाहता था अपने दोनों रिवॉल्वर उसके सीने पे खाली कर दूँ, पर खच्चे उड़ा दूँ। मैं अब वकार अफंदी के मस्मार कर दूं बड़ी हवेली को, उनका बच्चा जिंदा दरगोर कर डालूं। ये अलीज़े अफंदी मेरे सीने की आग को ठंडा नहीं कर पाएगी। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर भड़कते शोलों पे एक बूंद भी नहीं है। ये अलीज़े अफंदी, मैं पागल हो रहा हूँ अम्मा, मैं बड़ी हवेली वालों को ज़िंदा छोड़ आया हूँ। दिलावर शाह के अंदर का गुबार उन्हें देखते ही बाहर उमड़ आया था और बतूल शाह ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने हाथों में थपके थे। गलत फहमी है तुम्हारी कि बड़ी हवेली वाले जिंदा होंगे। हाँ, हो ही नहीं सकता, मर चुके हैं बड़ी हवेली वाले, जिंदा दरगोर हो चुके हैं। और वकार अफंदी अब अपनी मौत भी मांगे तो रब से उसे अपनी मौत भी नहीं मिलेगी। बतूल शाह उसे समझाते हुए इंतहाई नफरत और हकारत से बोली थी। उनके लहजे से जहर टपक रहा था, लेकिन मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था ताकि हशर के रोज़ अपने बाबा के सामने सुरखरू हो पाता कि उनका रह जाने वाला काम उनके बेटे ने कर दिया। दिलावर शाह के लहजे में अजीब सी अजियत और अजीब सी शिद्दत महसूस हो रही थी। बस करो शाह, मेरे हौसले बुलंदी रहने दो, वरना तुम्हारी माँ रेत की तरह बिखर जाएगी और तुम समेट नहीं पाओगे। बतूल शाह के अंदाज में थकन उतर आई थी और फिर ना चाहते हुए भी दिलावर शाह को खुद पे कंट्रोल करना पड़ा और उनके गिर्द बाजू लपेटते हुए उन्हें अपने बाजू का सहारा दिए अंदर आ गया। सलाम बेगम साहिबा। गुल बड़े एहतराम से आगे बढ़ी थी। वालेकुम सलाम, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। जुल्फी भी सोफे की पिछली साइड से निकलकर सामने आ गया। वालेकुम सलाम, जीते रहो, खुश रहो। वो काफ़ी खुश मिजाजी और शफकत से पेश आ रही थी। बेगम साहिबा, क्या लेंगी आप? मैं क्या लेकर आऊँ आपके लिए? आप आज पहली बार अपने घर आई हैं। आपको देखकर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है हमें। गुल वाकई उनकी आमद पे बहुत खुश हुई थी और उसकी खुशी का इजहार उसके लहजे से ही हो रहा था। मुझे भी अपने घर आकर और तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। अब आ गई हूँ तो यहाँ रहूँगी भी और तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने भी खाऊंगी। बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा, मुझे तो आपके लिए खाने बनाकर भी बहुत खुशी होगी। आप यहाँ ही रहें, हम आपकी खिदमत करेंगे। दिलावर शाह ने उनको बताया था कि गुल बहुत अच्छी लड़की है। सो बतूल शाह को उसके कहे पे यकीन आ गया था। वो वाकई अच्छी लड़की थी, समझदार और बुर्दबार किस्म की। साहब, नाश्ता लगा दूँ? वो दिलावर से पूछ रही थी। हाँ, लगा दो। उसकी इजाज़त मिलते ही गुल ने मिनटों में नाश्ता लगा दिया और वो दोनों माँ बेटा नाश्ता करने बैठ के उन दोनों के दरमियान फ़िलहाल खामोशी थी और उस खामोशी में खलन नबील हयात ने डाला था। उसकी कॉल आ गई थी। टेबल पे रखे उसके सेल पे वाइब्रेशन हो रही थी और दिलावर नबील का नंबर भी देख चुका था। किसकी कॉल है? नबील की। अरे तो फिर रिसीव करो ना। करता हूँ। उसने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए एक और सेल उठाकर कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ हो? तुमने तो कहा था कि तुम 15 को वापस आ जाओगे। तो मैंने कब इनकार किया कि मैं 15 को वापस नहीं आ सकता? तो फिर ये कि दरअसल मैं इस वक्त अपने घर में हूँ और अम्मा के साथ बैठा नाश्ता कर रहा हूँ। क्या तुम आ चुके हो? तुम नाश्ता कर रहे हो और तुमने मुझे बताने की जहमत भी नहीं की? बस यार, भूख लगी हुई थी, इसलिए सोचा कि तुम्हारे आने से पहले पेट पूजा कर लूँ। तो ठीक है, फिर तुम खाओ और मरो, लेकिन मुझसे बात मत करो। नबील ने गुस्से से कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया और दिलावर भी सख्ता हंस पड़ा। क्या बात है, क्या कह रहा था नबील? कहना क्या है, बस गालियाँ दे रहा था मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी वापसी का उसे क्यों नहीं बताया? हाँ तो बता देते ना। अम्मा, कैसे बता देता? अभी 1 घंटा पहले ही तो आया हूँ मैं। वो भी दुरुस्त कह रहा था। बतूल शाह सर हिला के रह गई। इतने में नबील की कॉल दोबारा आने लगी। अब उसे आपका ख्याल आया है? दिलावर ने पेशन गोई की। अस्सलाम वालेकुम। उसने दोबारा सलाम किया। तुमने कहा कि तुम अम्मा के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आंटी लाहौर आई हुई हैं? नबील की एयरपीस से सुनाई देती आवाज़ पे बतूल शाह के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई थी और दिलावर यकदम कहका लगाकर हंसा। मैंने तुमसे कुछ पूछने के लिए फ़ोन किया, तुम्हारे कह के सुनने के लिए नहीं। नबील जल भुन गया। ओह सॉरी। हाँ, अम्मा लाहौर आई हुई हैं, अभी अभी आई हैं, हम दोनों माँ बेटा तकरीबन। इससे पहले कि दिलावर की बात मुकम्मल होती, नबील ने फिर फ़ोन बंद कर दिया था और दिलावर फिर हंस दिया।
वकार अफंदी बेहोश थे। वो आईसीयू में थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ख़राब हालत उनकी थी जो होश में थे और आईसीयू के बाहर खड़े थे। बड़ी हवेली के एक एक फर्द के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी थीं, लेकिन उनमें से एक चेहरा ऐसा था जिस पे यूँ लग रहा था जैसे किसी ने खुद मुट्ठियाँ भर भर के मिट्टी डाल दी हो और उस मिट्टी के साथ वो चेहरा भी मिट्टी हो चला था। वो चेहरा वकार अफंदी का नहीं था। वो चेहरा ओन और अदीत का भी नहीं था। वो चेहरा सिर्फ और सिर्फ आजिर अफंदी का था, जो पहले कदम पे ठोकर खा के मुंह के बल गिरा था और चेहरे के सारे नकूश जख्मी और बदवज़ा हो गए थे, जिनकी अज़ियत और दर्द उसके दिल में ही नहीं उसके पूरे जिस्म में फैल रहा था किसी सरतान की तरह। आजिर, तुम घर चले जाओ। उसकी हालत ऐसी थी कि दानियाल को ना चाहते हुए भी उसे कहना पड़ा। जिस पे आजिर ने उसे जिन नज़रों से देखा था, दानियाल को चुप होना पड़ा। उसकी आंखों का जख्मीपन और नज़रों की काट दानियाल को खामोश करवाने के लिए काफ़ी थी। हाँ दानियाल ठीक कह रहे, तुम घर चले जाओ। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही और वैसे भी हवेली में कोई और नहीं है। इसरार अफंदी ने बेटे की हालत के पेश नज़र उसे घर जाने का मशवरा दिया था, लेकिन आजिर को किसी के मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तो जैसे बहरा हो चुका था। वो अस्पताल की राहदारी में दीवार के साथ लगे सोफे पे सर झुकाए बैठा नीचे चिकने फर्श पे किसी नादीदा नुक्ते को पिछले 3 घंटे से लगातार घूरे जा रहा था। चेहरा मुसलसल झुका हुआ था, लब भींचे हुए थे और आंखों में सुर्खी उतरी हुई थी। वो सर उठाने के काबिल नहीं था। किसी से बात करने और नज़र मिलाने को दिल नहीं चाह रहा था, बल्कि खुदकुशी कर लेने को दिल चाह रहा था। इतनी तजलील के बाद जीना भी कोई जीना था। आजिर के दिल में उबाल उठ रहे थे, जिनको भेजने के लिए वो अपने होंठ और हाथों की मुट्ठियां भेज रहा था। बाकी सब भी खड़े थे, बाकी सब भी चुप थे, बाकी सब भी परेशान थे, लेकिन जिस तरह आजिर अंदर ही अंदर मर रहा था, ऐसा तो कोई भी नहीं हो रहा था। अचानक आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर नदीम इकबाल बाहर आ गए। इसरार अफंदी और इजहार अफंदी के साथ साथ बाकी सब भी लपक के डॉक्टर के करीब गए। आई एम सॉरी, फ़िलहाल उनके बचने के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन पर फॉलिज का शदीद तरीन अटैक हुआ है, जिसमें उनका पूरा जिस्म मफलूज हो चुके हैं। इसलिए उनका दिल बंद होने का ख़तरा है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे फॉलिज का अटैक बहुत ख़तरनाक साबित होता है और उनकी लेफ़्ट साइड भी हद से ज़्यादा मुतासिर हुई है। ऐसे केसेस में मरीज़ के बचने के चांसेस महज 19% होते हैं। अगर मिस्टर वकार अफंदी नेक्स्ट 24 आवर्स में इस अटैक को अपने दिल पे बर्दाश्त कर लेते हैं, तो फिर उनकी ज़िंदगी की कुछ उम्मीद की जा सकती है, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। दुआओं से तकदीर भी बदली जाती है। आप सब उनके लिए दुआ कीजिए। डॉक्टर नदीम इकबाल उनका कंधा थपककर उनकी समातों पे एक और बम गिरा कर आगे बढ़ गए थे और वहाँ मौजूद तमाम अफराद धुआं धुआं हो गए थे। सब के सब दम बखुद और शशतर खड़े थे। ये दिन उनके लिए कौन कौन सी क़यामतें लेकर तुलू हुआ था, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। यूँ लग रहा था जैसे बड़ी हवेली के अरूज का सितारा डूब चुका था। वकार अफंदी की तबाही बड़ी हवेली की तबाही थी, एक अजीम तबाही।